Hello students, myself Rakesh Misra. As you all know, our overall lesson that assigned for session 2020-21 is over in previous month, and since long time you have seen the different kinds of revision from different lesson. Actually, only 4 lesson remain in our syllabus. The chapter 1 fundamental units of life, chapter 2 the tissue, chapter 3 health and diseases, and last chapter, that is chapter 4, is natural resource. In previous video lecture you have learned the long and short type question from health and diseases chapter, and before them you have learned the long and short type question from tissue and cell respectively. In this video lecture I will begin the long and short type question and their revision from chapter natural resource. This basically includes the very short answer type, and long answer type question. All about the MCQs, fill in the blanks, as well as the match the following question true false is over in previous video lecture regarding the health and disease, natural resource, and many more. But the theoretical portion that need to describe by you after getting the examination paper is still pending, and that need to revise thoroughly. In that series I have selected here the natural resource chapter and their revision from side book, which includes the very short answer and long answer type question. So one by one I will revise the each and every question thoroughly, and finally I will conclude the overall question along with their explanation. Whether the explanation if required, then I will also provide the explanation with example. I hope you have pen paper, you have a pen copy in order to note down the important concept regarding the lesson, so that you are able to gain the knowledge about that lesson, knowledge about that particular question in order to write the answer. Because without understanding the criteria of question you will unable to write the important answer for that question. So in this series let we begin the important long and short type question and their revision from chapter natural resource. Without delay timing, let back over the very short answer type question of natural resource. Now the very short answer type question. Let me begin the revision of very short answer type question. The question may probably have 1 marks. Listen carefully. But here I will begin the question and I will revise the question by taking them as a 5 marks as a long answer type question, and I will try to thoroughly explain the each and every question so that you are able to solve the question related to 5 marks or 10 marks if the questions are having the same kinds of matter. The first question is, what are the constituents of air? यानी कि पूछ रहा है एयर का जो की इंग्रेडिएंट्स है, एयर का जो की कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है. ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैंने एटमॉस्फेयर बताया था. द एयर मेनली प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर. एयर इज द मेन पार्ट ऑफ main constituents of air, main constituents of atmosphere. Listen, airs are actually found in the atmosphere, and it form the major constituents, major ingredients of air. Actually air are the mixture of different kinds of gas. Air can be defined as the mixture of different kinds of gases, and that gases are actually 21%. Our atmospheric air consists 21% oxygen and 78% of nitrogen gas, and rest about 8 to 9%. Rest about 8 to 9% are actually the not 8 to 9%. It is about 1 to
2%. Rest about 1 to 2% are actually the other gas. So the main constituents of air is 78% nitrogen, 21% oxygen, and 1 to 2% other gas like the sulfur dioxide, carbon dioxide, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन तो अवेलेबल ही है, ठीक है। तो ये सब अदर में आ जाएंगे, वाटर वेपर, H2O, वाटर वेपर। सो you need to focus on the concept 21% the oxygen and 78% nitrogen, and rest 1 to 2% about sulfur dioxide, carbon dioxide, carbon monoxide, water vapor, etc. I hope your concept regarding the constituents of air is clear. Now back to the next question. What is greenhouse effect? What is greenhouse effect? इसको मैंने कई बार बताया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। पहले तो समझिए कि ग्रीन हाउस होता क्या है। एक्चुअली मैंने बताया था ग्रीन हाउस होता क्या है कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, यानी सनलाइट इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि जो न्यू ग्रोइंग प्लांट्स उसको डैमेज कर सकता है। लेकिन फार्मर्स क्या करता है, फार्मर्स धूप से बचाने के लिए एक पॉली बैग की एक शील्ड बना देता है। इसी पॉली बैग की शील्ड को बोलते हैं, जो पॉली बैग की शील्ड दिख रही है, इसी पॉली बैग की शील्ड को बोलते हैं ग्रीन हाउस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस, ठीक है। ये ग्रीन हाउस ना रहे तो सनलाइट डायरेक्ट फॉल होगा और किसको डैमेज कर देगा? प्लांट्स को। इसी टर्म का यूज करके साइंटिस्ट एक टर्म दूसरा लाते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो, अर्थ है, ये क्या है आपका अर्थ, ठीक है। अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट के कुछ गैस है, अर्थ के ऊपर एनवायरनमेंट का कुछ एटमॉस्फेयर का कोई गैस है, गैस का एक मिक्सचर है, ये एक लेयर बना देते हैं। और इस गैस के मिक्सचर में कौन कौन है? इस गैस के मिक्सचर में है मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। चीफली तो यही है, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस के जो मिक्सचर है ना, ये जो लेयर दिख रहा है, इसी लेयर को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैस एक्चुअल में करता क्या है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ग्रीन हाउस गैस जब सनलाइट से हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी एनर्जी वाला, टेम्परेचर वाला जब सनलाइट आता है तो ये सीधे अर्थ सरफेस पे आके टकराता है, लेकिन ये वापस नहीं जाने देते हैं, ये फिर से उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर पे उसको भेजते रहते हैं। इसलिए पूरा का पूरा ये अर्थ जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो अर्थ है वो कुछ समय के बाद जो है हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट। और ये ओवर हीटिंग ग्रीन हाउस गैस की वजह से जो होता है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस लाइक मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो एक नंबर में आप लिख लेंगे, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो इसको आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ, ठीक है। आई होप अब इसको कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये डन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। व्हाट इज ओजोन लेयर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आपकी प्रैक्टिस जमनी चाहिए, इस पर आपकी प्रैक्टिस बननी चाहिए, ठीक है। इसको मैं इम्पोर्टेंट की सीरीज में रख दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ओजोन लेयर क्या होता है भाई? लिसन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का एक एटम एटमॉस्फेयर के दूसरे एटम के साथ मिल करके क्या बनाता है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स। और इसको बनाने में किसका रोल होता है? अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से निकलता है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों ऑक्सीजन के एटम है। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के दूसरे एटम से जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और इसी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ओजोन। सो ओजोन आर द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ओजोन गैस के फॉर्म में हमारे अर्थ के, ये हमारा अर्थ है,
अर्थ के ऊपर, गैस के फॉर्म में हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर ऐसे बनाता है, ठीक है। गैस के फॉर्म में हमारे अर्थ के ऊपर कौन से अर्थ लेयर में, कौन से एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में, ये एग्जाम में आता है कभी कभी, ये स्ट्रेटोस्फियर्स, स्ट्रेटोस्फियर्स का मेन कंपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रोपोस्फियर्स में भी पाया जाता है, लेकिन ट्रोपोस्फियर्स में जो पाया जाता है ओजोन लेयर वो हार्मफुल होता है, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, लेकिन स्ट्रेटोस्फियर्स वाले ओजोन का पॉजिटिव रोल होता है, ठीक है। अब इसका रोल क्या होता है उसको भी समझ लीजिए आप। होता क्या है कि सनलाइट से, ये सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट से जब हार्मफुल यूवी रेज, इनसे जब हार्मफुल यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जब आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये अगर ओजोन लेयर न रहे, ये क्या है आपका ओजोन लेयर, ठीक है, ये ओजोन लेयर अगर न रहे तो हार्मफुल यूवी रेज सीधे हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगा और हमारे प्लांट्स को, हमारी बॉडी को ये नुकसान पहुंचाएगा, स्किन कैंसर काज करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम काज करता है। लेकिन होता क्या है कि ये ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करते हैं और जहाँ से भी अल्ट्रावायलेट रेज आता है उसको दोबारा से रिटर्न बैक कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको आने नहीं देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न बैक करते हैं। कौन, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ओजोन गैस हैं, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में है, इसकी वजह से ये हार्मफुल यूवी रेज आने नहीं पाता और फिर वो रिटर्न बैक हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो ओजोन लेयर है, वो ओजोन लेयर का हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेज से जो नुकसान है वो हमारी बॉडी बच जाती है। तो ये ओजोन लेयर एक शील्ड का काम करती है, इस वजह से हम बच पाते हैं, ठीक है। और ओजोन लेयर अगर पूछ रहा है तो लिखेंगे लेयर ऑफ ओजोन गैस दैट प्रेजेंट इन आवर स्ट्रेटोस्फियर्स एंड ट्रोपोस्फियर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज ओजोन लेयर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन नहीं बताया, अगर ओजोन लेयर डिप्लेशन पूछ दे या हाउ ओजोन फॉर्म पूछ दे तो उसको मैं दोबारा से भी रिवाइज करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं क्वेश्चन भले ही 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का है, लेकिन मैं थोरोली उसको 5 मार्क्स मान करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर को कैसे डिफाइन करेंगे, द अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट form the stratus, upper layer of atmosphere that form the inside the stratospheres and tropospheres the triatomic molecules, layer of triatomic molecules of ozone called as ozone layer। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। डिफाइन एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को मैंने कई बार समझाया है कि आप पॉल्यूशन को एक पैरामीटर बना लीजिए। पैरामीटर क्या बनाएंगे, द अनडिजायरेबल चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार समझाया भी है। The undesirable changes in physical, chemical and biological, इसको लर्न भी करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर called air pollution। The undesirable change in physical, chemical and biological properties of air called air pollution। अनडिजायरेबल क्या है, जिसको आप नहीं चाहते हैं, अनडिजायरेबल मीन्स जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाउ डू एयर लुक लाइक, इफ एयर आर नीट एंड क्लीन दैट इज विदाउट एनी डस्ट पार्टिकल्स देन एयर्स आर free from pollution। If there is any dust particles seen in the air then there is the problem of air pollution। Biological property, if there is any microbes seen in airs then there is the biological property of air। Chemical property of air, the pure air should have 78% of nitrogen and 21% of oxygen and rest 1 to 2% of other gas। If the mixture of other gas enhance rapidly
then absolutely the value of or oxygen or nitrogen will get immediately low down or decrease down in the particular habitats or in the particular area. That airs are actually called as polluted airs. So the chemical property means property of air that consists almost abundant amount of nitrogen and oxygen is having the property of chemical property of एयर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको मैंने समझा दिया, बता दिया. अगर इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप क्वेश्चन जो है समराइज कर लीजिए और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं किसमें, लाइव सेशन में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर. मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है? वाटर का सोर्स सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेसिकली तो रेन वाटर होता है, लेकिन अर्थ पे ये पूछ रहा है कि ये रेन वाटर जाता कहाँ कहाँ है और जहाँ जहाँ जाएगा, ठीक है, वही मेन सोर्स है. तो जो पीने का पानी होता है उसका मेन सोर्स क्या है? ग्राउंड वाटर. क्या है? ग्राउंड वाटर. इसके अलावा पॉन्ड, लेक, रिवर, ओसीन, ये सब क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है. 1 मार्क्स में आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, 1 मार्क्स में आप लिखेंगे भी. ठीक है. कौन कौन से हैं? ये ग्राउंड वाटर है जो ड्रिंकेबल होता है, पॉन्ड वाटर, लेक वाटर, रिवर, ओसीन, और अर्थ पे मेन सोर्स है रेन वाटर. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. ये 1 मार्क्स में है. अगर क्वेश्चन को और किसी ढंग से पूछता है तो उसको मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कराऊंगा. ठीक है. ये 1 मार्क्स में आपको इतना लिखना है. ठीक है. ग्राउंड वाटर, पॉन्ड वाटर, लेक, रिवर, ओसीन एक्सेट्रा. ठीक. तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लिखना है कॉपी में और समझना है. नाउ क्वेश्चन है विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आते हैं. पूछ रहा है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म वाटर का अर्थ पे क्या है. तो नोट कर लीजिए, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है रेन वाटर. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन लाइफ. एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक नॉलेज पे डिपेंड है कि आपके लाइफ में वाटर की क्या एडवांटेज है, क्या इंपॉर्टेंस है. इसको हर कोई कर सकता है. फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो आपको क्या है? ड्रिंकिंग पर्पज. ठीक है. वाटर सबसे पहले सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए. इसके अलावा इरिगेशन, किस काम के लिए? इरिगेशन, सिंचाई के लिए. ठीक है. प्लांट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है. इसके अलावा आप जितना भी चाहें लिख सकते हैं. कौन कौन से टॉपिक लिखेंगे? फॉर वॉशिंग, इंडस्ट्रियल पर्पज, कंस्ट्रक्शन एंड मैनी मोर्स. दैट इज़ 5 पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू describe the importance of water in human life. The drinking, irrigation is clear, while the washing clothes, the industrial purpose, and the different kinds of construction. For example, for the purpose of building or making of different kinds of bridge, there is a need of a lot of water that actually form the cement solution, and that cement actually used to form the different kinds of wall and different layers over the walls. So I hope your concept from 1 to 7 is clear. That is your concept from question number 1 to 7 from natural resource from 1 to 7 is clear. If you have any problem from 1 to 7, then you make the list of that problems. I will undoubtedly try to solve that problems. In next video lecture, I will describe the question number 8 onward from very short answer type question. Thank you.